मेरा साथ लोगे, मेरे साथ लोगे तो यारो तैयार हो। मान लोगे तो जान लोगे। सो सबसे पहले तो हाउ इज द ओवरऑल रिस्पॉन्स ऑन उम्र यार। मैंने और अतीब ने तो जाके 2 दफ़ा देखी है फिल्म। मुझे मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ ऐसे कि ये वाला कंटेंट मुझे पाकिस्तानी थिएटर्स में, पाकिस्तानी स्क्रीन्स पे नजर आ रहा है, जो कि बहुत बड़ी बात है। लाइक इट इट फील्स रियली सेटिस्फाइंग टू मी कि यार मैं जा रहा हूँ और मुझे पता है कि यार ये इस तरह का जॉनर है। सही है। इट्स समथिंग डिफरेंट, इट्स समथिंग स्पेक्टिकल। ठीक है। तो मुझे बताएं कि हाउ इज द ओवरऑल रिस्पॉन्स ओवर द फैंस, यूथ, जो खास तौर पे यंग यूथ है, एंड द अदर जनरेशन आल्सो। अमेजिंग यार, रिस्पांस तो बहुत सुपर रिस्पांस मिला है हमें तमाम डेमोग्राफिक से। आई मीन चाहे वो बाहर की आवाम हो या पाकिस्तानी हो, एवरीबडी लव फिल्म। देयर वर सम पीपल जिन्होंने मतलब बकायदा ऐसे ऐसे मैसेजेस भेजे हैं जो हमें रोना आ जाता था पढ़ते हुए कि ओ माय गॉड, is it really happening? Because obviously, I think a lot of our audiences are like they've been waiting for something like this. And मैंने पिछली जितनी भी फिल्मों पे काम किया था, हमेशा कोई ना कोई इस तरह का रिमार्क मेरे ऊपर आता था कि आप ऐसी फिल्म क्यों कर रहे हैं, आप रोम कॉम ना करें, आप ये करें वो करें। तो अब हमने की है एंड उसके अच्छे बहुत मजेदार रिएक्शंस आए हैं। उस्मान। Uh, I think we've gotten some great reviews and responses from people that I was generally expecting that wouldn't like it. But then we've also had a very polarized opinion about the film. And surprisingly, we've gotten very good reviews and very good, like genuine responses from people, Pakistanis abroad. And we were in Dubai to promote the film, and we were there to attend a screening. And we met some Emirati people as well, and they were really surprised. They're like, "We didn't expect this from Pakistan. This doesn't look like a Pakistani film." And that was very reassuring, and that felt very nice. But then again, we have people in our own country who have had a very polarized opinion about the film. And what people need to understand is this is the first of its kind. Yeah. It is the first time anybody has dared to make something like this without it looking like a joke. Exactly. यहाँ पे अक्सर तौर पे whenever somebody tries to do something like this, it either you could tell that the VFX are lacking and it turns into a joke. This is the first time somebody has made something that can be taken seriously, and you can proudly say that this is a Pakistani film. But unfortunately, we've had polarized opinion, and I feel like with something like this, people should have been more. I think people should have been more accepting of the fact that this is Pakistan's first and owning it and being proud of it, which surprisingly a lot of people, Pakistani people that who live abroad are doing. I've gotten so many messages from Indian fans who've seen it in Dubai or Australia, and they've loved it. So that is. That is the feedback that I've got. And honestly, genuinely, we've gone to cinemas, we've gone for cinema visits, and I don't know if people, do that because we went to cinemas, even though, a lot of audience members have come up to me during my previous projects, with dramas or films, and they told me, oh, we didn't like this, or we did like this. And during the cinema visits, we came across audiences that absolutely loved it, and we were getting out of the cinema and they're chanting hum hum hum, and that was a very surreal experience, genuinely. So yeah. Adil sir.
Yeah, honestly, though, I agree with both of them. एक तरफ there is that kind of response which is completely overwhelming. You know, एक इस तरह का भी रिस्पॉन्स आया हमें कि जिसमें ना मतलब यू आर कंप्लीटली ब्लोन अवे विद यार ओके आई डिड नॉट एक्सपेक्ट पीपल टू लाइक इट दिस मच, ठीक है, हालांकि आपने पूरी एफर्ट की होती बट यू बिकॉज यू आर ऑन द मेकिंग साइड ऑफ इट, तो हाँ। आपकी अपनी कुछ जिटरीनेस भी होती है कि अच्छा हाँ, पता देयर इज अ नहीं 50-50 कैसे receive थोड़ा सा किया जाएगा। कि कैसा परसीव होगा एंड ऑल दैट। एग्जैक्टली फिर वो फॉर लाइक फॉर एग्जांपल आपको कई दफा पता भी होता है कि अच्छा ठीक है यार मुझे पता है कि हमारी बनाई हुई प्रोडक्ट में कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स हैं फॉर एग्जांपल, बट देन यू नो व्हेन इट एक्चुअली कम्स आउट तो द स्ट्रेंज थिंग वाज कि यू नो लोगों ने कई चीजें वो नोटिस ही नहीं की जो मुझे पता थी कि अच्छा ठीक है यार ऐसा इसमें शायद ये वाले मसले होंगे, राइट, बट मोर इम्पोर्टेंटली जो जोई ने बात की ना कि यार इट वाज अ देखो इट्स अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड। अब Yeah, इसमें it ना is. इट्स मिक्स्ड बैग। अब मिक्स बैग किस तरह से कि एक एस्पेक्ट तो उसका ये है कि देयर वाज अ लॉट ऑफ फर्स्ट्स दैट हैपेंड इन दिस मूवी, Yeah. ठीक है, इट वाजंट जस्ट द एक मेजर बिग चंक वाज द वीएफएक्स पार्ट, ठीक है, फिर फॉर एग्जांपल हम ऐसी फिल्म कर रहे हैं जिसमें कोई गाना नहीं है उस तरह, हाँ। कोई नाच गाना नहीं है, ठीक है, हाँ। कोई आइटम नंबर नहीं है, देयर इज नॉट इवन लाइक अ रोमांस इन द फिल्म। Yeah. अब मुझे याद है कि जब असफर और मैं इसके ऊपर काम हमने जब शुरू किया था, जब हम इसको लिख रहे थे, ठीक है, तो इट वाज वन ऑफ दोस थिंग्स कि यू नो हमने पहले एक प्रिंसिपल फैसला किया था कि यार ओके हमने ये काम नहीं करना इस तरह कि हमने इसमें कोई आइटम नंबर नहीं डालना, यू नो, इट वाज अ थिंग कि जब वो ऑडियंस ने उसको रिसीव किया ना वैसे ही, और जब ऑडियंस ने इस बात को अप्रिशिएट किया, इतने लोगों ने ये कहा कि यार इट वाज सो रिफ्रेशिंग टू सी अ स्टोरी rather than a show. Yeah, exactly. The packaging needs to be honest ताकि आवाम को पता हो कि वो क्या जो है कंज्यूम expect करने करें। जा रहे हैं। Yeah, exactly. फिर एज अ राइटर अगर आप मुझसे पूछो तो मेरे लिए देखो लाइक फॉर एग्जांपल अ लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच आई पुट इन देयर वर वेरी मेरे लिए दे वर प्रिविलेज बिकॉज देयर वाज अ लॉट ऑफ डीप नॉलेज दैट वाज इंस्टॉल्ड इन दिस फिल्म। अब वो ऑब्वियसली वो बहुत सारी आवाम नहीं भी पिक करती, ठीक है, लेकिन जो आवाम उसको पिक करती है ना एंड व्हेन दे गेट बैक टू यू कि जी यू नो व्हाट आई नोटिस्ड व्हाट यू डिड देयर, कि आपने जो इसमें मैसेज छोड़ा है जागने का, Yeah. ठीक है, आपने जो इसमें डिफरेंट मैसेजेस छोड़े हैं अबाउट यू नो स्पिरिचुअलिटी एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, हाँ। यू नो अबाउट आइडेंटिटी, अबाउट हु यू आर एटसेट्रा, तो जब ये चीजें सामने आएगा तो दैट्स अ वेरी यू नो ब्यूटीफुल रिस्पांस टू लुक एट। Yeah. For example, like, you know, this is an origin story. या अब मैं आपको एक बहुत मजे की एग्जांपल देता हूं कि ओरिजिन स्टोरी की जगह अगर ये आपको फ्रॉम द मिडल ऑफ द बैटल ग्राउंड ये या मिडल ऑफ कोई काफ ये स्टोरी शुरू होती फिल्म की, हाँ। where you don't know how Umru became Umru. हाँ। He's just, you'd be like, मिसिंग होल्स context रहता नहीं है है, बहुत सारे। ये हो You're क्या like, रहा है, लोग ये कहते हैं कि ये क्या context नहीं है, फिल्म समझ नहीं आई. You now get an origin story where there's a quantum physics professor हाँ। who never in his life has probably gone to a gym. He's probably gone for like evening walks. हाँ। You know, he's a quantum physics professor. He does ekdam se he gets to find out that he is the chosen one or whatever. He's not going to act like a superhero. Exactly. You know, this is an origin story. So people don't understand. और मुझे ये लगता है, you know, there's that actor, I don't remember his name, but he plays Yondu in Guardians of the Galaxy. Yeah. He said that, and I have nothing against TikTok. I think TikTok is a great platform for people who want to make videos for TikTok, you know. But he said TikTok has ruined the attention span of cinema goers. Yeah. आप अगर देखें पुरानी फिल्में, like I grew up with like very bipolar choices for films. Like I would watch Amitabh Bachchan movies like Tufan and Ajuba, and then I would watch Dog Day Afternoon and Scarface. Yeah. And Godfather. So these were like the 2.5 hours, तीन घंटे की yeah. फिल्में होती थी, and हाँ. people sat down, watched those movies and liked them. That's what cinema was. अब हम लोग we don't dissect the film like we should. कि यार you're watching an origin story. You're not watching, you know, Avengers Endgame. हाँ.
there's a difference. Yeah, yeah. एक साहब का मैंने इंटरव्यू देखा जिन्होंने कोशिश की, उन्होंने पूरी कोशिश की to kind of criticize the entire film, and what he ended up comparing the film with is Shawshank Redemption. He was like, फिल्में होती हैं Shawshank Redemption type. You're seriously going to sit there and compare the first Pakistani sci-fi film to Shawshank Redemption? Like, sometimes I just feel like people just want to hate because they just want to hate. Like if so, you I mean, it's if you're just- going to the gym और आप 3-4 महीने 7 महीने you work hard and you have a physique, a decent physique, सही है, and they're and you gonna start compare. comparing yourself to Kai Green. हाँ, exactly. It doesn't. So yeah. Yeah, सही है, नहीं, you're right, you have a point कि हमारे यहाँ थोड़ा सा acceptance का issue है, थोड़ा सा like, और हमारे यहाँ what India does very fairly अच्छा कि वहाँ पे audience का perspective थोड़ा सा broad हो चुका है. Even they expect Bollywood to give them some content जिसमें deeper level of layering हो, जिसके अंदर कैरेक्टराइजेशन हो, एवरीथिंग हैज टू बी ऑन पॉइंट, और वो फिल्में चलती हैं, सही है. अब ओटीटी आ गया है तो वो ज्यादातर आवाम वहां की भी ओटीटी पे ही चली गई है. क्यों? क्योंकि उनको वो कंटेंट वो नहीं मिल रहा. अब हमारे यहाँ ये एक्सपेरिमेंट जब होता है तो इट हैज टू बी मिक्स्ड. ये तो एक एक्सपेक्टेड चीज होती है कि वंस यू आर एक्सपेरिमेंटिंग ऑन समथिंग तो ये एक मिक्स्ड रिएक्शन होता है. एंड आई कंप्लीटली रिलेट विद यू कि जब हम लोगों ने ये चीज ट्राई की थी तो एवरीवन वाज लाइक, व्हाई डू स्किट्स, डू फनी कॉमेडी, एवरीबॉडी इज डूइंग इट. सही है. तो when you walk against the norms, एक फ्लो चल रहा होता है ना एक अवाम का, और when you're walking against it तो आपको टक्करें लगती हैं. ये तो है. which लेकिन असफर सर, हाँ, सेकंड क्वेश्चन मैं कह रहा हूँ, हाँ असफर सर, मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोगों को अगर इसके ऊपर अभी बैड क्रिटिक्स भी आ रही हैं तो हम लोगों की आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस चीज को इग्नोर करें, क्योंकि आप लोगों को शायद अभी इस चीज का आइडिया नहीं है. We need a trilogy. रिव्यूज तो दे रहे होंगे एक जनरल ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से. हाँ, क्या चीज बात सर? वी नीड अ ट्रिलॉजी. हाँ, वो तो हमें चाहिए, लेकिन मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ. देखें, आप लोगों ने ना ये जो स्टेप उठाया है, अब जैसे हम लोग इस चीज के ऊपर लगे हुए, तो पाकिस्तान में इतनी बड़ी आबादी है, तो सिर्फ हम लोग नहीं है जो जान मार रहे हैं, और भी लोग होंगे जो इन चीजों को करना चाह रहे हैं. तो अब उन लोगों के लिए गेटवे खुलेगा. इवन के उस्मान भाई, मैं आपको अभी रिसेंट एक्सपीरियंस बताता हूँ. मैं अपनी यूनिवर्सिटी में लगा हुआ हूँ कि मुझे मेरी यूनिवर्सिटी स्क्रीनिंग करने दे हमारी सीरीज की. मुझे अपनी यूनिवर्सिटी चांस नहीं दे रही थी. आप लोगों के जाने के बाद मुझे टीचर्स ने पकड़ा है उस्मान भाई कि अब आ जाओ बच्चे, अब आ जाओ, वो जो तुम्हारा था ना, हम तुम्हारा सेमिनार रखते हैं, अब करते हैं. सही है. तो मैं 2 मिनट के लिए ऐसे हो गया कि ये क्या हुआ अब इनको. ठीक है. तो फिर मेरे अंदर से लिटरली दुआएं निकली आप लोगों के लिए कि आप लोगों ने अपने स्केल पे इस चीज को उठा के नॉर्मलाइज ले किया, आए सिनेमा थोड़ा स्क्रीन सा तक. नॉर्मलाइज किया कि हाँ कि ऐसे कंटेंट भी है और ऐसा कंटेंट वो है, तो ऑटोमेटिकली होगा ये कि और भी फिल्म मेकर्स ट्राई करेंगे टू द सेम एक्सपेरिमेंट दैट यू आर डूइंग, राइट. तो इफ वो जो सबसे ज्यादा रिस्क होता है ना, वो होता है बड़े स्केल पे जो आप लोगों ने लिया, एंड दैट्स रियली कमेंडेबल. देखिए, जो ये वाली चीज होती है ना कि कोई लोग कमेंट्स कर रहे हैं, क्रिटिक कर रहे हैं, ये लोगों का काम है कि वो ये करें, ठीक है ना. अगर उनका काम होता फिल्में बनाना तो वो फिल्में बना रहे होते, वो क्रिटिक ना कर रहे होते. हमारा काम है फिल्में बनाना. सो मैं तो पर्सनली, मैं अपनी बात अगर करूँ, आई डोंट लिसन टू दीस क्रिटिक जो भी आती हैं इस तरह की. कंस्ट्रक्टिव होती है तो मैं उसको अपने बिल्कुल इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करता हूँ. बट जिस लेवल पे रह के हम लोगों ने एक चीज पुल ऑफ की है, वो कोई और उस चीज को ट्राई करेगा तो शायद वो समझेगा कि हम कहाँ से आ रहे हैं. Don't you think these kind of critiques थोड़ा सा उससे प्रोड्यूसर का कॉन्फिडेंस लूज होता है? अगर वो प्रोड्यूसर का एक्सपीरियंस नहीं है तो डेफिनेटली. मैंने अपनी पहली फिल्म जो बनाई थी सया 2013 में, उसके ऊपर क्रिटिक लेके मैं तो रोता रह गया था. जब मैंने जानान बनाई, मुझे एक्चुअल क्रिटिसिज्म तब आना शुरू हुआ. मैंने कहा ओ, असल क्रिटिसिज्म तो यहाँ पे आना शुरू हुआ. पर्ची के बाद मैं बहुत हीट हो गया. मैंने कहा कि आने दो,
bring it on. I don't care. I literally don't care what anybody says about my film. It's my अच्छा film. जब I made it. अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है वो बना ले, उसी स्क्रिप्ट पे बना ले, अगर उसमें है इतना दम, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मेरी फिल्म पे उंगली उठाने से पहले पहले अपने गिरेबान में, तो Exactly. मेरा सिर्फ ये उस पे वो होता है। लेकिन अगेन आई डोंट माइंड दीज थिंग्स। इसमें देखो ये वही वाली बात है ना कि आप जब हर एक इंसान हर एक प्रोफेशन में हर एक फील्ड में उसको एक अपोजिंग फोर्स फील होगी, उसको एक बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म की ऑपोजिशन मिलेगी, चाहे वो जो भी प्रोफेशन। So my point is why I'm sharing this is because कि ये होता है, these things happen, a lot of people just उंगली उठाना तनकीद करना बहुत इजी होता है नहीं, और लोगों कुछ को। बहुत मुझे कुछ बहुत अजीब अजीब क्रिटिसिज्म भी मिले हैं। और मैं कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म मिले तो मैं आई सिट विद एक तो हेटर्स भी होते हैं ना, मतलब हेटर्स का तो कोई जवाब ही नहीं। अब एक मैंने फिल्म की चिक्कड़, एंड दैट वाज अ वेरी रियलिस्टिक फिल्म। इट वाज रियलिस्टिक सिनेमा। उसमें हम लोगों को मेकअप भी इजाजत नहीं था, हम लोग आते थे वर्दी पुलिस की पहनते थे, बाल ब्रश करते थे, शूटिंग में चले जाते थे। और हमारे जो डायरेक्टर थे उन्होंने बहुत रियलिस्टिक लोग नापा के अच्छे एक्टर्स और ये वो उठाए जो उनको लगता था कि कैरेक्टर को फिट बैठते हैं। मुझे एक साहब का कॉल आई फिल्म के प्रीमियर के बाद, कुछ मेरे ख्याल से अगले दिन या उससे अगले दिन, और उन्होंने कहा कि यार मुझे एक बात बताओ, ये जो साहब हैं जो डायरेक्टर हैं ये पागल हैं? मैंने कहा नहीं। कहते हैं इन्होंने वाकई अपनी जेब से पैसे डाले हैं इस फिल्म के लिए। मैंने कहा हाँ। कहते हैं यार एक गाना नहीं इस फिल्म में, दूसरा इतने बदसूरत लोग एक ही फिल्म में इकट्ठे कौन डालता है? अब आप मुझे ये बताएं कि मैं इस पे क्या जवाब दूं। बट अजीब लोगों खूबसूरती का वो आपको कहना चाहिए था सर। देखें, ब्यूटी तो सब्जेक्टिव होती है, ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ पीपल। but it's just it's very surprising sometimes to hear the kind of things that we get to hear about certain projects. अच्छा, एक बंदा मुझे इस्लामाबाद में मिला, उसने ही सेड समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। उसको मैंने बताया ना कि यार, उसने मुझसे इसी तरह सवाल किया कि व्हाट्स द फीडबैक ऑफ द फिल्म। मैंने उसको बताया, मैंने कहा इट्स अ मिक्स्ड बैग, कुछ लोगों को बहुत पसंद आ रही है, कुछ लोग बहुत क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं। तो वो मुझे ना ऐसे देखना शुरू हो गया। ही सेड समथिंग रियली पॉजिटिव। ही सेड कि यार ये जो लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, इनको बिठा के कोई बंदा सिर्फ ये सवाल करे कि यार ओके लेट्स से दैट द एक्टिंग इज बैड कंपेयर टू व्हाट इन पाकिस्तान, the cinematography is bad compared to what in Pakistan, ठीक है, the story is bad compared to what in Pakistan। कहता है कि इनको कोई बिठा के ये पूछे कि यार तुम कंपैरिजन का स्टैंडर्ड क्या रख रहे हो। What is the blueprint for a sci-fi superhero science fiction film in Pakistan? Please tell me. Exactly, thank you। ये है What ही is ना। the blueprint? There is no blueprint. This is the first time it's been done. The blueprint Exactly. is Amro, yeah। वही अब उस्मान भाई, बात ये है कि जब यहाँ पे आपके सामने मार्वल की फिल्म लगती है, एडवांस बुकिंग चल रही होती है। अभी जैसे वोल्वरिन और डेडपूल आने वाली है, ठीक है, अभी मैं उसका टिकट यार कराने उसके गया। लिए तो मैं खुद बहुत एक्साइटेड हूँ। हाँ, उसका मैं टिकट कराने गया तो इतनी मुश्किल से हमें सीट मिली है। तो यहाँ पे ये चल रहा होता है, ठीक है, कि देखिए अच्छा, यार, बाय द वे एक ये चीज है कि ये हमें भी सुनने में आया, ये उमरू के साथ भी हुआ है। A lot of people have messaged us initially कि हमें सीट्स नहीं मिल रही, हमारे साथ भी ये हुआ था। बट देन इट मतलब अगेन वही बात है कि कई जगह पे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी था। It was very like we have a group where we share like reviews and stuff, and people, the things that they say. If there's something constructive, we share that. If there is somebody saying कि हमें उधर जहाँ पे आपने सिनेमा की वो शेयर की है वहां पे फिल्म नहीं प्ले हो रही, that as well, the positive feedback as well. तो हमारे पास बहुत हुआ है, और काफी दफा हमारे साथ ये हुआ है कि people are like कि हमें यहाँ पे सीट नहीं मिल रही, यहाँ नहीं मिल रही। तो ये भी हुआ है उमरू के साथ, which is also कि यार हाँ, मतलब that is also great. बासित जो है पहले दिन की ही बात है, रात का टाइम था, जो लेट नाइट शो लग रहा था, 8 साढ़े 8 बजे के करीब था। तो बासित पहुंच गया था, मैं थोड़ा लेट हो गया आने में ना। तो अब बासित ने मुझे बोला कि 2 मिडल सीट्स हैं ई रो में, तो आ जाओ, मैं उसका टिकट ले लेता हूँ। अब ये था कि बासित के पास कैश नहीं था, कह रहा मेरे पास कार्ड है तो तुम लेकर आ जाओ। अब जितनी देर में मैं पहुंचा हूं ना उस्मान भाई, वो सीट्स भी गई।
तो फिर Yeah. हम वहीं बैठे, हम लोगों ने पॉपकॉर्न एंजॉय किए, फिर हम उसके अगला शो लिया हमने। तो ये चीज तो हमने एक्सपीरियंस Yeah, किया, और इस no. चीज की बहुत खुशी हुई दिल से। I mean, it's just again like my wife is my biggest critic. Like वो होता है ना कि आपको एक बंदा जो है आपको वो लेके आता है जमीन पे और आपको आके पटकता है. My wife does that for me, and which is a very good thing because I feel like she keeps me grounded in a way. Like she genuinely hates some characters that I've played. She hates this character I played, Dr. Haris, and she hates Aswad from Hum Kahan Ke Sachte. She's like, if I see these guys ever again, I should like. She's very vocal about it. There is, Usman bhai, there is a Spider-Man moment in the film. Which one? Ant May वाला. Yeah. Yeah, I was so happy कि वो आपने वो फिल्म के थोड़ा सा बाद में आता है, वो काफी वो आता है, बट व्हेन दिस वाज हैपनिंग तो मैंने अतीफ से बोला था कि शी शुड डाई. Yeah. सही है. You know Although- that हाँ वो stakes बढ़ जाती है ना आपकी. हाँ हाँ हाँ. Yeah. तो आई वॉज रियली हैप्पी ऑन दैट. मैंने कहा था कि मैं आपसे कभी डायरेक्ट बात होगी तो मैं बोलूंगा. तो वो मुझे मोमेंट बहुत अच्छा लगा. इट वाज रियली that entire montage Yeah. that entire montage that goes from the apartment to the lair, and Azam and Maz are there, and Chino Bhai comes and all. That is one of my favorite moments in the film. Yeah, That every time I watch it gives me goosebumps. हाँ. There should have been more scenes of her. मतलब मुझे ऐसा फील होता है कि बट There वो should- रन टाइम की वजह से शायद आई थिंक. वही ना, और अगर आप ज्यादा डालते तो फिर उस पे भी कोई वो आ जाता कि इतना ज्यादा सुपर हीरो फिल्म में ये क्या था. हाँ ये You know, like I had to cut down the film for the release. अच्छा. Like there were 15 minutes were chopped off. अच्छा, what was the main inspiration behind every aspect of the film? जैसे अब जैसे there had to be a design of the jinn. There had to be a design of how would the smoke look. मुझे मेरा दोस्त है सफ़ी. He is a VFX artist in this film. So he told me that आपका भी थोड़ा बहुत VFX background है, and you were directly involved with the VFX team and Usman too. So what was no, it like? I wasn't. Hmm. I would just come and piss them off by pointing out something that was very minor, and they'd be like, "बाकी जो हमने किया है वो नजर नहीं आ रहा." हाँ, that's it. But Asfar is, I think, my go-to guy for VFX is Asfar. Asfar is amazing with VFX. Safiullah की आप बात कह रहे हो ना? Yeah. Safi, yeah. Yeah, Safi was in our team. Yeah. It was, I think, when we were coming up with the idea, me and Atif, I think हम लोगों ने इस पे डिस्कशन की थी, if you remember, कि okay, what will be the demon की एक फॉर्म हम क्या करेंगे. And I was very, like, मेरा बहुत specific एक दिमाग में था कि I wanted to, ideally speaking, वो कहते हैं ना कि they're made of fire. Mhm. So I wanted to play with fire, but then I wanted to stay away from Ghost Rider. And then करते करते हम स्मोक की तरफ जब आए तो उस पे फिर एक सवाल ये हो गया था कि okay, then smoke is like not fire technically, but then I added that वो जो एक अंदर एक रेड कलर की एक चिंगारी थी, embers भी add किए, embers, and then like lightning चल रही है, तो एक hint दे दी कि okay, there is some fiery stuff happening inside of it, and it looks different than normal smoke. मतलब ये चिमनी की स्मोक सिर्फ नहीं है, मतलब चारकोल. मतलब what you did is switch the two things. आपने स्मोक के अंडर फायर को एक एलिमेंट दे दिया, एक लाइफ दे दी. सही है. As opposed to my VFX supervisor then at that time was Hamza Suraj Bajwa. He was the one who pointed this out at one point कि we need more layering, because we had many iterations. हमारे पास बहुत versions निकले थे demon के. The base body itself on its own, I wish I could show you all those here. I don't have them with me, but there were so many models that we created, sketches and everything, which
I was not happy with eventually because मुझे वो लग रहा था बहुत complicated होता जा रहा है. I wanted them to be थोड़ा सा simplified for the audience to digest as well as the character ना, because एक तो पहली बात तो ये वो उसको पहले बहुत ज्यादा attention मिल रही थी उस character को. Demon in my film was not an important character. He was just another pawn. And I wanted to focus more on the human side. I wanted Lakka to be more, that dangerous menacing. guy than the He was. अगर मैं demon से डरा रहा हूँ तो फिर Lakka हाँ, he का was तो literally. मतलब वो एस्पेक्ट तो अंडरलाइंड है ही, लेकिन once he speaks, वही मैंने जो बताया कि वो वाला जो सीन है जिसमें स्पॉइलर अलर्ट के जो डेथ सीन है, तो उसके अंदर ही वाज रियली मेनेसिंग. मतलब to nail a villain is much harder than nailing the protagonist. Yeah, so my idea was from the get-go कि I wanted humans to be of that level जिसको हम villain कहें और वो super villain कहें, but not any supernatural कोई चीज. हाँ, वो supernatural चीजें use करे बेशक, that was the idea. So उधर से वो शुरू हुआ था, and then when we were experimenting with whatever visuals that we could come up with, तो उसमें iterations करते we ended up with these multi-layered smoke demon, charcoal black demon with electric lightning and some embers falling out from it. Plus with a face. At first I didn't want a face, but then when I did a test, I had actually I had drawn a face in my storybook. Yeah. In that shot, जो basement में होती है ना sighting. So मैं असल में उसे replicate करा था, but I didn't like the face जो मुझे पहली दफा मिला. तो मैंने वो खत्म किया, and then फिर दोबारा ले आया वापस. So there were so many iterations. करते eventually, I think I was really happy with what we have. Now it's a version जो कि बहुत iterations के बाद हम लोग पहुंचे हैं. So it wasn't कि हमने बैठे बस वहीं पे जो सोच लिया वही चीज आ गई. It takes a long time to sketches, बहुत सारे sketches चलते हैं, and then you come to the models, and then you come to the simulation part, and then again simulation की अलग R&D होती है. उसके अंदर again Hamza, as I mentioned, he was very critical about it कि नहीं ये तो ऐसे जाने ही नहीं देना हमने, without layering हमने करने ही नहीं देना. Especially that scene that we use in the trailer where Amar is going, and there's a lot of that shot was our demo shot, by the way, where जब हमने 3 versions मुझे निकालने थे, one of the demon alone, one was of Lakka controlling the demons, and one when the demon is controlling the human, which is in our case victim was Amar. तो वो जो अमर की शॉट है ऑफ स्क्रीन, that was our demo shot जिससे हमने पास किया था कि yes, this is what we want for the rest of the. अच्छा, वो मुझे सबसे ज्यादा पॉलिश शॉट लगता है, और मुझे मेरा जो फेवरेट आई कॉल इट द मनी शॉट. आई कॉल इट द मनी शॉट, जिसमें वो स्मोक, आई लाइक हाउ द स्मोक इम्प्लोड्स इनसाइड, नॉट उसके एक अपनी लाइफ है स्मोक की. सही है, बहुत iterations हुई हैं उस पे. I can't even count. I couldn't even count. मैं आपको honestly टाइम कभी नहीं बता सकता जितना हमने उसके ऊपर तकरीबन. It took us at least a year to come to that. Hamza was at lead with that, and then Zunain, who did the smoke simulation, was also अपने बाल नोच रहा था कि where is this going? How many times do I have to do the same thing again? But again, there was like, in the end, वो सारी art direction worked together and came out really. And I was maybe it's me. Arthur, maybe you should tell the story this time. अच्छा देखिए, as far as casting goes ना, जब हम स्क्रिप्ट लिख रहे थे, and we were maybe on our, I think we were on our first draft even, ठीक है. अब कई लोग, अब जैसा this nephew of mine मुझसे पूछ रहा था कि जी did उस्मान मुख्तार pull off what you had imagined? मैंने उसको ये बताया, मैंने कहा यार बेटा, what you don't understand is कि जब मैं लिख रहा था ना, तो for some reason by default I was imagining उस्मान मुख्तार, ठीक है. And I remember sharing this with Asfar कि यार बात सुनो, ये for some reason मेरे अंदर ना ये बार बार आ रहा है, एक inclination आ रही है. हाँ, You've ruined the story. अच्छा, so I clearly remember we wrote it on our script. You wrote it on your script, and it was not the first draft. I think it was some
हाँ later मैं Raj सेकंड या थर्ड था हाँ was sitting, you were typing, अभी वर्जन बन रहे थे, and I was at the sofa, and हम लोग वो we were writing down names, हर एक के कैरेक्टर के नाम हाँ के हम सामने। आगे तो नाम लिख रहे थे उस जमाने में माज के सामने भी एक नाम लिखा हुआ था, ओ चीनू भाई यस के सामने एक नाम लिखा हुआ था, लक्का के नाम, हर एक का लिखा हुआ था। अमर के सामने हमने जब नाम लिखा और फिर हमने जब टैली किया एक दूसरे के साथ, आई रोड उस्मान मुख्तार, ही रोड उस्मान। हाँ एग्जैक्टली हम So दोनों ने that एक ही नाम was, लिखा और हमने, oh, that's a sign, that's a sign. But we Oh, said no, stop we it, don't want guys. him. We don't want him because ये तो फैलने की जरूरत नहीं गोल्डन है कोइंसिडेंस। उस्मान भी आपने अपनी प्रोफाइल पे लिखा हुआ है ना, डीसी फैन बॉय। हाँ, तो वो मुझे Yeah. लग रहा है कि वो मैनिफेस्टेशन जो है ना वो अच्छा जो यार, जो जो इसमें I- ना इसमें जो मेरी रीजनिंग थी ना मैं वो बताता हूँ ठीक है जब जब बिकॉज जो कैरेक्टर मैंने इमेजिन किया था ना ये जो इसने प्ले भी किया वैसे ही बिकॉज फ्रॉम द गेट को हमने एक डिसीजन कर लिया था कि ही विल बी क्वांटम मैकेनिक्स प्रोफेसर ठीक है अब इसमें ना देयर इज अ लॉट ऑफ न्यूआंस इन द कैरेक्टर कि उसका एक साइंटिफिक माइंड है हु इज कॉन्स्टेंटली गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ सेल्फ डाउट एट द सेम टाइम ठीक है वो अच्छा फिर उसके अंदर देर इज अ सर्टन वो एरोगेंस है उसके अंदर लॉट ऑफ सम थिंग्स टू स्टार्ट विद इन द कैरेक्टर फिर उसका एवोल्यूशन इतना ज्यादा है ड्यूरिंग द फिल्म फ्रॉम दिस एरोगेंट साइंटिफिक माइंड एंड ही इज बीइंग थ्रोन इनटू दिस एंटायर डिफरेंट वर्ल्ड जिसमें उसकी सारी कॉन्सेप्ट्स हैं वो चैलेंज हो रहे हैं हाँ, ही ट्राइज टू फाइंड लॉजिक इन एवरीथिंग ना। एग्जैक्टली अब एक तरफ ये एस्पेक्ट था बट देन एट द सेम टाइम आई ऑल्सो वांटेड हिम टू हैव अ सेंस ऑफ ह्यूमर या ठीक है अब वो एस्पेक्ट ऐसा था कि यार मैं किसी और को भी इमेजिन करता था ना तो वो फॉर सम रीजन कोई एक ना एक एस्पेक्ट आउट हो जाता था तो जब मैं उस्मान को इमेजिन करता था तो इट वुड ऑल कम टुगेदर कि हाँ यार दिस इज द कैरेक्टर यही बनता है हाँ, इट्स क्वाइट हार्ड उस्मान भाई, व्हाट यू डिड रियली वेल के मुझे ऐसा फील हुआ कि जब हम एक पाकिस्तानी माहौल में या उस लैंग्वेज में सुपर हीरोज, क्वांटम मैकेनिक्स और इस तरीके की बातें करते हैं तो देर इज अ सर्टेन टाइप ऑफ डिसबिलीफ कि ये ऑफ लग रहा है, ये मतलब ये हमारे जबान से अच्छा नहीं लगेगा। मतलब अगर हम कुछ सर्टेन एलिमेंट्स, सुपर हीरोइक एलिमेंट्स या साइफाई एलिमेंट्स अपने उर्दू में बोलें तो वो इंग्लिश को मिक्स करने में वो एक अजीब ब्लेंड होता है। बट what your writing did and what उस्मान did brilliantly के उसे एक बैलेंस दिया कि वो ना ज्यादा क्रिंजी लग गया, सही है, एक होता है एक थोड़ा सा क्रिंजीनेस आती है कि वो ये नहीं होना चाहिए था, बट वो डायलॉग का बैलेंस, एवरीथिंग वाज रियली स्मूथ इन माय ओपिनियन। Well, I mean, this was during COVID. I had shot a project और उसके बाद COVID आ गया and I was I'm very paranoid about my mother's health and everything and she's generally immunocompromised. तो I'd stopped taking up projects because मैंने कहा मैं बाहर जाके घर पे कोई चीज नहीं लाऊंगा अपनी वालदा के लिए। तो for 6-7 months I was actually nobody was working during that time. So we were indoors, हम लोग घर के अंदर ही थे, we weren't going out। ये वो दाढ़ी मेरी इतनी बढ़ गई थी and just like all I was doing was gaming and eating, and that's it. Then I remember before COVID, a friend of ours, Asfar and mine, Umair Alvi, he's a very good journalist, and like an actual film critic. Like Umair is one of those people, जैसे आप अगर 1959 में एक फिल्म आई थी जिसमें मतलब शमीम आरा थी और उनका नाम, हाँ, तो वो आपको उसी वक्त बता देंगे without thinking. So he came to Islamabad and he like, oh, I want to meet. So Asfar and I met him at Jesse's in Islamabad. At that point, Asfar told me, oh, I'm working on something and I can't say much about it right now, but I'll tell you later. अच्छा, मेरे दिमाग में कभी गुजरा ही नहीं कि कोई ऐसी चीज है। मैंने कहा अच्छा, he is doing something. वो वैसे ही जैसे बात होती है और गुजर गई। उसके बाद कोविड आ गया, कोविड में हम लोग जो है वो घर में, and then one fine day I get a call from Asfar and he's like, I want to talk to you about some project.
and can you come to this location in F8? एंड मेरा असफर के साथ वैसे ही मजाक थोड़ा ज्यादा है आई गेस, तो मुझे लगा कि मैं वैसे पता नहीं कोई कॉमेंट भी मारा था मैंने इसको कि मुझे किडनैप तो नहीं कर लोगे या कुछ. सो आई मीन आई जस्ट आई वेंट देयर, आई वाज इन माय शलवार, की दाढ़ी मेरी बड़ी हुई है, हालत मेरी खराब हुई हुई है, एंड I go there and I meet the producers for the first time, and Asfar sitting there, and I sit down and he's like, "Oh, so there's this project and we're keeping it hush hush, and do you know about Umro yaar?" And I'm like, no, he can't be working on. Even at that point, in that moment, I was like, no, he can't be working on Umro yaar. Like Umro yaar ki jo 7 किताबें आई थी उनमें से एक लिटरेचर का पीस है, दैट इज अ रोमांस लव स्टोरी जिसपे हम, एंड ही इज लाइक वी आर वर्किंग ऑन उम्रो यार, एंड आई जस्ट सेड यस. आई डिडंट नो इफ आई एम प्लेइंग उम्रो यार और द गाय हु एट उम्रो यार or like a side character or whatever. I just said yes. अच्छा एक मिनट, पता है, let me reiterate your exact words. I was there. इसके अल्फाज पता है क्या थे? सारा कुछ सुनने के बाद ये बड़ी खामोशी से सुनता रहा पहले सारा कुछ ना, कि असफर ने पूरा इसको बताया, इसको मैंने स्टोरी का भी थोड़ा बहुत बताया, सारा कुछ इसको बताने के बाद जो इधर उधर देख के कहता है, where do I sign? No, because see, the thing is, and then like they narrated the film and the character to me, and Lakka's character was so brilliantly written and such a nuanced character कि आपको डर लगता था, and I'm like, who's going to play, because that is very important, who's going to play Lakka, and like अब मेरे दिमाग में ऑलरेडी एक नाम आ चुका हुआ था, by the way, because I had worked with him and I was talking to him, and Asfar go like Farhan Tahir, and I said that's exactly who I was thinking, because he could have done, and I was like, this is going to be, and till the film released I kept telling people, I was like, they're pranking me. This is not possible. What are the chances of me being in the same film as Farhan Tahir and playing Umro yaar? It's not like, so I till the release I was like, they're pranking me. But again, like, it was a dream come true, regardless of whatever the outcome is. It was a dream come true for, I think I can speak for all the actors on board to work on this project. It is like the inner child जो मेरे और अली काज़मी के, हम दो तो, and फरहान भाई, we've read Umru, we've grown up with these stories, तो हम लोगों के लिए तो our dream, like a childhood dream came true. अभी मैं ये पूछना चाह रहा था आपकी इसी बात से कि मुझे पता चला कि आप लोगों के जो स्टंट्स थे वो आप लोगों ने सारे एक्टर्स ने खुद किए, मतलब कोई स्टंट मैन आप लोगों ने नहीं लिए थे, तो इज इट ट्रू? Yeah, it is true. It is true. हम लोगों को ये था कि अगर हम लोगों ने ना कर दी स्टंट करने से तो शायद ये फिल्म से निकाल ना दें. अच्छा. तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था. I had riggers थे मेरे पास, 2 head rigger, key rigger, and then a stunt coordinator, Ian Temperley, and हम लोगों की जब जितनी भी बिल्कुल इनिशियल मीटिंग्स थी, दौरान की मीटिंग्स थी, उसमें उस वक्त तक हमारी कास्ट हमारे पास नहीं मौजूद थी, लेकिन हमारी साइनिंग हो चुकी थी एवरीवन. तो मैंने उनको जब बताना शुरू किया कि ओके दिस इज द गाय प्लेइंग दिस, सारी मैंने तस्वीरें भेजी, उन्होंने पूरी डिटेल्स मंगवाई मुझसे, उनकी हाइट, वेट एंड एवरीथिंग, बिकॉज दे वांटेड टू फाइंड अ मैच कि जो स्टंट्स करेगा. तो ओरिजिनल प्लान में ये था कि वी विल हैव सम स्टंटमैन एंड वुमेन, बट द थिंग इज कि उसने अपनी रिसर्च जब की एंड देन शेयर्ड कि यार मुझे ये बंदे मिल रहे हैं एंड ये सारे जो हैं ये तो टशकरे से हैं, दे आर लाइक यूरोपियंस एंड इस तरह के, मुझे इधर से ये मिल रहे हैं, एंड आई डोंट थिंक इट्स गोना वर्क फॉर योर फिल्म. तो क्योंकि तुम लोगों का गेटअप वो इस तरह, तुम कवर ज्यादा नहीं कर रहे, तुम लोग दिखा रहे हो एक्चुअल फेसेस प्रॉपर्ली, दाढ़ी मूंछ से भी थोड़ा सा छुप जाता है. सो आवर कैरेक्टर्स वर नॉट, हाँ ठीक है दाढ़ी मूंछ थी, लेकिन दे वर वेरी क्लियर के कौन कौन. So that's why we went with okay, let's just do it with the actors. So उसने मुझसे ये कहा था कि we need the actors on before we go on shoot.
रिहर्सल्स मैंने करनी थी एनीवे मेरे एक्टर्स के साथ, तो उन रिहर्सल्स के दौरान बस मैंने अंदर से ये कहा था कि यू हैव टू बी हियर फॉर स्टंट रिहर्सल्स एज वेल, बिकॉज उससे वो वायर के होती है, साथ थोड़ा सा हाँ, या एक रिग होता है, उसके साथ एक रिहर्सल होना जरूरी होती है, अदरवाइज फिर डिजास्टर्स भी हो सकते हैं। लड़ाई चोटें भी लगी हैं बाय द वे, हाँ ऐसा हाँ, नहीं है। अली आई वो थिंक तो गॉट हर्ट while he Yeah. was doing that stunt. Pillawala got hit on his head, but nothing serious. कोई ऐसी चीज नहीं हुई। समझ उस्मान जो है वो उनको हम हार्नेस पहना के बिठा देते थे, फिर थोड़ी देर बाद उस्मान आता था दूर से चलता हुआ मेरी टेबल चेयर के पास, और आई कुड टेल ओ उस्मान नॉट हैप्पी। और फिर उस्मान आके मुझे कहता था कि अकबर यार ये कितनी देर मुझे पहनना, चल अगर मुझे वॉशरूम जाना है तो मैं क्या करूं। क्या करूं। इट्स टफ, इट्स नॉट इजी। आपने, और वो जाहिर है वो लोग स्टंट कोऑर्डिनेटर्स जो होते हैं वो आपको वो ऑन द गो रखना चाहते हैं हाँ कि हाँ बस ये शॉट हुआ अब अगला आ जाए, तो दे डोंट वांट एनीबॉडी आउट ऑफ देयर वही हार्नेसेस को पहना के रखते हैं, वो मुश्किल होता है उसमें बैठे रहना। हाँ, बट आई थिंक दे डिड अ गुड जॉब एवरीवन, सबने स्टंट बहुत अच्छे पुल ऑफ किए हैं। उस्मान के तो हाइट फोबिया भी आई थिंक अब तो खत्म हो जाना चाहिए उस्मान आफ्टर। हाँ, बाय फ्लाई। पहले मैं फ्लाइट्स भी नहीं लेता था, हाँ, मैं आई वुड ड्राइव टू कराची, बट अब मैं फिर भी आई फ्लाई टू आई कराची। हैव अ हाइट फोबिया, बट इतना नहीं कि फ्लाइट वगैरह, या बट आई डू गेट कॉशियस के बहुत ज्यादा हाइट है इवन इन टॉल बिल्डिंग्स। वो व्हाट आई एम रियली स्केयर्ड ऑफ आपको इज बस अंडर फेयर वाटर। ऑफ हाइट्स होगा, fear। हाँ, फेयर ऑफ हाइट्स है, यहाँ नॉट fear नहीं फोबिया। है, यहाँ हाँ, पे वो अलग है। एक्सट्रीम वर्ड है। तो हाउ वाज द एक्सपीरियंस के जब हार्डनेस और ये सारी चीजें जब फर्स्ट टाइम, व्हाट वाज द फर्स्ट स्टंट दैट यू डिड, व्हाट वाज द फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ द हार्डनेस के गेटिंग यूज्ड टू इट के फॉर अ मिनिस्क्यूल ऑफ अ शॉट के ये मेरा शॉट है, इट्स अ मीडियम या इट्स अ क्लोज, और थोड़ा सा हार्डनेस वो मूव तो रिहर्सल में ही हो गया था, वो तो रिहर्सल्स में ही हो गया था। वो तो रिहर्सल्स में उन्होंने हार्डनेस से आपको उड़ाना शुरू कर दिया था और स्टंट करा कर दिया। हाँ, तो वो एंड आई थिंक दैट वाज अ गुड स्ट्रेटजी, बिकॉज बाय द टाइम वी स्टार्टेड शूटिंग वो नर्वसनेस हमारे मुंह पे नहीं आ रही थी, या बिकॉज वी हैड गॉटन यूज्ड टू इट। बट वो उन्होंने रिहर्सल्स में शुरू कर दिया था। ऑलराइट, या सो आतिफ भाई, व्हाट मतलब वाई उम्र यार, मतलब हम देखते हैं कि इट्स mythological कैरेक्टर्स होते हैं, ग्रीक माइथोलॉजी, इंडियन माइथोलॉजी एंड एवरीथिंग, तो व्हाई चूज उम्र यार as and convert this into a like a sci-fi genre in a modern time, तो उसको कैसे आपने ट्रांजिशन किया from that बचपन की स्टोरीज to this? अच्छा देखो, उसमें देयर इज अ बंच ऑफ फैक्टर्स इन दैट। पहली बात तो ये कि आई डिडंट चूज उम्र यार, दिस वाज जो हमारी प्रोडक्शन कंपनी है कि उनका डिसीजन था कि दे वांटेड टू डू उम्र यार। Oh, okay. ठीक है, बट आई आंसर द सेकंड पार्ट Yeah. कि ट्रांजिशनिंग, बिकॉज मुझे याद है हम लोग, मैं, असफर और हमारे प्रोड्यूसर्स, हम बिल्कुल शुरू की मीटिंग्स में ना, वी वर सिटिंग एट सम रूफटॉप कैफे इन F6। तो मेरे ख्याल है उसी वक्त, आई रिमेंबर आई वाज जस्ट वॉकिंग, मैंने कहा यार हमारे पास मुझे तो एक ही रास्ता समझ में आ रहा है कि वी नीड टू टर्न दिस इनटू अ मॉडर्न डे सुपर हीरो ओरिजिन स्टोरी। अच्छा, अब उसकी रीजनिंग बहुत सारी थी। एक फैक्टर ये था कि बिकॉज देखो, हमारा जो टारगेट ऑडियंस था ना, ठीक है, वो थे आप लोग एसेंशियली। हाँ, ठीक है, अब when you talking about a particular generation, ठीक है, बिकॉज ज्यादा सिनेमा गोअर्स वही हैं, हाँ, फिर अब जब आपने तो व्हाट वी वर गोइंग विद वाज कि यार ऑलरेडी इनकी वोकैबुलरी इन टर्म्स ऑफ फिल्म वाचिंग डिफरेंट हो चुकी है बिकॉज ऑफ मार्वल एंड हैरी पॉटर एंड व्हाट नॉट। ठीक है, अब जब आप इस तरह की ऑडियंस के लिए कोई चीज बना रहे हैं, ठीक है, तो यू कांट, अगर तो आप बिल्कुल एंशिएंट टाइम्स में जाए तो उसके और बड़े चैलेंजेस थे। या ठीक है, अब लाइक फॉर एग्जांपल उसमें इस किस्म के चैलेंजेस भी थे कि लाइक देयर वाज, सॉरी ये क्या हो रहा है? नहीं, you can speak, yeah. अच्छा, ओके, सो लाइक उसमें इस तरह के चैलेंजेस भी थे कि एक तो फ्रॉम अ प्रोडक्शन स्टैंड पॉइंट इट वुड हैव बीन वेरी डिफिकल्ट टू पुल ऑफ इन पाकिस्तान। फिर ज्यादा प्रॉब्लम ये था कि जो ओरिजिनल कैरेक्टर था उमरो यार, उसकी स्टोरी टेलिंग के अंदर ऐसे रिलीजियस न्यूआंसेस थे जिसपे अगर वो टच ना करते तो भी हम फंस जाते, और अगर हम टच करते तो असफर या मैं जो है ना वो उठा लिए जाते। ठीक है, तो
मतलब उस सो देयर वाज अ लॉट ऑफ थिंग्स इन देयर व्हिच वी कुड नॉट टच अपॉन, तो हमारे पास चॉइसेस बहुत, इट वाज अ वेरी लॉजिकल चॉइस टू कम टू दिस थिंग, कैसे इसको एक मॉडर्न डे सुपर हीरो बनाना है। अब या हाँ, अब आइडिया वाज कि यार हमने इसको कनेक्ट भी करना है टू द ओरिजिनल उमरो यार। सो अब उसमें देन एज द स्टोरी स्टार्टेड टू डेवलप, तो उसमें आइडिया वाज कि अच्छा चलो हम ऐसा करते हैं कि एक एक करके ही आइडियाज डेवलप हुए, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल डोंट नो दिस कि यार लाइक आपको पता है स्टोरी को कितनी दफा लिखा गया था, हाउ मेनी टाइम्स द स्क्रिप्ट वाज रिवाइज्ड। देयर वर 19 ड्राफ्ट्स ऑफ द फिल्म, 19 व्हाट 19 ड्राफ्ट्स, ठीक है। और ये जनवरी में मैंने इस पे काम शुरू किया था, और एंड वन ड्राफ्ट आफ्टर अनदर, और उसके ऊपर असफर की और मेरी लड़ाइयाँ और बहसें, और मतलब है कि कि मतलब ये तुम किधर लेके जा रहे हो फिल्म को, मैंने कहा मैंने इधर ही लेके जाना है फिल्म को, और ये है वो है, सो मेनी। फिर लाइक फॉर एग्जांपल आई वो मुझे तो मौका मिल गया था अपनी सारी फिलोसफियां झाड़ने का, तो मैंने तो बिल्कुल नहीं पा दी थी शुरू में, तो देयर वाज सो मच टॉकिंग गोइंग ऑन इन द फिल्म, जो असफर से बहुत चिढ़ रहा था, फिर ब्रिंगिंग ऑल दैट डाउन, फिर ये वो सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब करते करते व्हेन द स्टोरी इवॉल्व ना, तो ये भी क्रिएटिव प्रोसेस का हिस्सा होता है। या कि देखो एज एज अ राइटर ना, जो द बिगेस्ट लेसन आई हैव लर्नड इज दैट फॉर लैक ऑफ अ बेटर टर्म, यू हैव टू लर्न टू किल योर बेबीज, बिकॉज एवरीथिंग यू राइट इज लाइक योर बेबी, ठीक है। तो जब आप किसी टीम में काम कर रहे होते हैं ना, तो उसमें जितनी इनपुट्स आ रही होती है ना, यस यू टेक इट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट आल्सो, आप उसको बहुत क्रिटिकली देखते हैं, आप देखते हैं को बंदा क्यों क्रिटिसाइज कर रहा है किसी चीज को, एंड देन यू इवॉल्व विद इट, यू चेंज विद इट। तो बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो शुरू में जब पहला ड्राफ्ट निकला, तो लाइक ऑल फर्स्ट ड्राफ्ट, पहला ड्राफ्ट हमेशा एक ऐसी मॉन्स्ट्रोसिटी होता है जो सिर्फ आपको ये बताता है कि क्या नहीं करना, हाँ एग्जैक्टली ठीक है। तो उसके बाद आहिस्ते आहिस्ते जब वो रिफाइन होता गया ना, तो ये सारी चीजें जो आप कह रहे हो ना कि यार ये सारे जो कनेक्शंस थे स्टोरी के विद ओरिजिनल उमरो यार, फिर उसके मॉडर्न डे न्यूआंसेस क्या हैं, कितनी साइंस डालनी है, कितना मैजिक डालना है, ठीक है। फिर लाइक फॉर एग्जांपल शुरू शुरू में आई रिमेंबर आस्किंग असफर दिस कि यार जब मैंने शुरू किया था कि कितना वीएफएक्स मैं सोचूं कि हम कर पाएंगे, तो असफर ने मुझे कहा कि यार देखो तुम इस तरह मत सोचो, असफर ने कहा कि जस्ट गो क्रेजी, यू राइट व्हाट यू वांट राइट, ये हम बाद में करेंगे कि हम क्या कर सकते हैं कि नहीं, ठीक है। तो मुझे याद है मेरा पहला ड्राफ्ट जो था वो इट वाज 300 पेजेस लॉन्ग, ठीक है। वो काफी लंबी स्टोरी थी, इट वाज लाइक इजीली को 4 घंटे की 4.5 घंटे की फिल्म बन रही थी वो, ठीक है। बट इनएविटेबली ना ये सारे पीसेस कनेक्ट होते हैं ओवर टाइम, ये कोई एक दफा का काम नहीं होता, ठीक है। और इसमें असफर की और मेरी ये पूरी एक सिनर्जी थी, एक वेवलेंथ थी कि यार ओके ये ऐसे करना है, ये ऐसे नहीं करना, ये ऐसे करना है, ये ऐसे नहीं करना, हमारी एक लैंग्वेज डेवलप हुई आपस में ड्यूरिंग दैट टाइम। सो जो भी ये जो राइटिंग प्रोसेस है ना, फिर लाइक फॉर एग्जांपल एक चीज विच मतलब देखो मुझे भी इस फील्ड में को तकरीबन 20-21 साल हो गए, ठीक है। फॉर द फर्स्ट टाइम एवर मुझे कोई ऐसा डायरेक्टर मिला था जिसने मुझे कहा था कि गो बाय द टेक्स्ट बुक ऑफ राइटिंग, कि यार व्हाट, हमने एक्सपेरिमेंटेशन नहीं करनी है इन टर्म्स ऑफ हाउ द स्टोरीज आर सपोज टू बी टोल्ड। तो जो स्टोरी स्ट्रक्चरिंग है दैट वाज म्यूजिक टू माय ईयर्स, बिकॉज मैं लोगों के सामने पिट उठता था कि यार स्ट्रक्चर फॉलो करो, स्ट्रक्चर फॉलो करो, लोग नहीं करते थे। अब इट वाज अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर फॉर मी कि यार असफर हिमसेल्फ वाज सेइंग कि यार बात सुनो, हाँ, ये स्ट्रक्चर है, हमने ये फॉलो करना है। आई वाज लाइक यस वी आर देयर, दिस मींस अ लॉट फॉर द इंडस्ट्री नाउ, अगर हम ये कर पाते हैं तो। एंड दैट्स एक्चुअली व्हाट हैपेंड। आप अगर स्टोरी बीट्स को फॉलो करो, ठीक है, वी हैव स्टक टू द स्टोरी टेलिंग नॉर्म्स एंड कन्वेंशंस कि ये है तरीका इस तरह की कहानी बताने का। देखो हर जॉनरा की ना एक तमीज होती है, अब सुपर हीरो जॉनरा की भी एक अपनी तमीज है, या ठीक है। अब आप there is खिचड़ी a नहीं lot बना of सकते, research. हाँ या There is a lot of research that went into this film, ठीक है, not just in terms of the genre, in terms of like for example मुझे याद है मेरे हफ्ते लगे on researching quantum mechanics, ताकि कोई भी ऐसा जुमला अमर के मुंह से ना निकले जो क्वांटम मैकेनिक्स का प्रोफेसर देख के कहे कि यार ये क्या बकवास कर रहा है, ऐसा तो नहीं होता, ठीक है। मतलब वो साइंस So much मम्बो जम्बो research. एंड ऑल दैट कि कुछ भी आपने जो है वो कर दिया एंड ऑल दैट। एग्जैक्टली, फॉर एग्जांपल इसका ओपनिंग शुरू के सीन्स में इसका एक ओपनिंग सीन है कि जब ये एक एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है, ठीक है, तो वो ठीक है, तो वो एक्सपेरिमेंट नंबर दिस ये फॉर्मूला इसको वेबर में करने से भी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हो सकता है वो ट्रांसपोज कर रहा है और वो कोई वेरिएबल मिसिंग है। अब ऑल ऑफ दैट आपको नहीं पता कि यार वो एक जुमला लिखने के पीछे कितनी रिसर्च चाहिए थी मुझे, यू सी व्हाट आई मीन, ताकि उसमें कोई ऐसी गलती ना हो। मुझे आई नीड टू नो कि वेबर का मतलब क्या होता है, ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, राइट। सो अब द फैक्ट वाज कि ना
फिर इसके बाद जिन्नों की रिसर्च कि जिन्नात क्या होते हैं, उनकी नॉर्म्स क्या हैं, हम कौन सी कन्वेंशंस फॉलो कर रहे हैं, जिन्नों के बारे में कितने कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है, अब कितनी टाइप्स के जिन होते हैं, अब फॉर एग्जाम्पल इफरीत क्या होता है क्या नहीं होता, ठीक है, जिन क्या होता है क्या नहीं होता, जिन इंसान को पोजेस कैसे करता है, बॉडी के कौन से हिस्से में घुसता है, अगर आप फिल्म में गौर करो तो बहुत छोटी छोटी डिटेल्स हैं जो अभी शायद लोगों ने उससे कनेक्ट ही नहीं की, कि जो आपकी हाथों की वेबिंग होती है इसके अंदर यहाँ पे स्पिरिचुअली कुछ सुराख होते हैं जहां से जिन घुसते हैं, वहां से होते हैं, घुटनों से घुसते हैं, देर आर कोनियों से घुसते हैं, देर आर सो मेनी एस्पेक्ट्स टू दिस फिल्म जो लोगों ने अभी तक शायद उसका खोल के देखी ही नहीं है, ठीक है, जब अभी लोग लोग खोल के ऐसा ऐसा देखेंगे इसको डिटेल डिकोड इन दिस। करेंगे, नहीं, क्योंकि when देखिए जब talking हम about लोग this, हाँ, इसके इसके बारे में जब हम लोगों ने मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट बीच में सुना ना, तो उसके ऊपर भी बड़ी खुशी हुई कि आप लोगों ने इस चीज को भी इम्प्लीमेंट करवाया। हाँ, तो ये Exactly. चीजें बासे तौर में बीच में हम लोग साथ बैठ के ना एक दूसरे को बार बार यूं देख रहे थे मुस्कुरा के, तो हम लोग का ये चल रहा था बीच में। फिर देखो, अच्छा, फिर कई चीजें ऐसी थी कि लाइक फॉर एग्जांपल अगर ये असफर ना होता ना, कोई और डायरेक्टर होता, तो मुझे सबसे बड़ा ये मसला होता कि मुझे बार बार एक जुमला सुनने को मिलता, यार ये आवाम को समझ नहीं आएगा, यू सी व्हाट आई मीन। अब लेकिन अब मुझे ये बहुत बड़ा एज हासिल था कि यार माय डायरेक्टर वाज विद मी सेइंग कि यार बात सुनो, वी गॉट टू डू दिस राइट, वी कैन नॉट अंडर एस्टिमेट द ऑडियंस, या ठीक है, और आप ऑडियंस की इंटेलिजेंस को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, आप मल्टीवर्स कहेंगे तो उनको समझ आएगा। फिर देखो हम एक पाकिस्तानी कल्चर में रहते हैं, और पाकिस्तानी कल्चर के अंदर स्पिरिचुअलिटी बहुत ज्यादा इन्फ्यूज्ड है, ठीक है, चाहे वो हमारे क्या कहते हैं खवातीन जो है हमारे, कुछ खवातीन हमारे कल्चर की जादू कराती हो, चाहे कुछ करती हो, या वोट एवर द केस, ठीक है, ये हमारे कल्चर का हिस्सा है, सूफिज्म हमारे कल्चर का एक मेजर हिस्सा है, या राइट। अब अगर आप एक देसी सुपर हीरो बनाने जा रहे हैं, हाँ, तो आपको एक कल्चरल न्यूआंस जहन में रखना पड़ेगा, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अगर गोरे फिल्म बनाते हैं, उनका हीरो बाय डिफॉल्ट फिल्म के एंड पे सेल्फ सैक्रिफाइस करता है, क्योंकि वो जीसस के आर्केटाइप को फॉलो करते हैं, यस, हाँ, हाँ, ठीक है। अब दैट्स अ ब्रिलियंट वे टू गो अबाउट मेकिंग अ स्टोरी, ठीक है, और सबकॉन्शियसली भी वो लोग भी एक्सेप्ट कर लेते हैं कि एक्सेप्ट कर लेते हैं, हाँ, तो वो Absolutely सबकॉन्शियसली वो उनके माइंड में फेड अप होता अब है। देखो फॉर एग्जांपल अब हमारे केस में क्या था, अगर अगर कोई मेरे से पूछे कि यार एज अ राइटर मैं क्या चाहता था कि इस फिल्म से क्या मैसेज जाए, ठीक है, तो मैं तो ये चाहता था कि इस फिल्म से मैसेज ये जाए कि यार देयर इज एक्चुअली अनदर यूनिवर्स आउट देयर राइट इन फ्रंट ऑफ यू, जस्ट बिकॉज यू कैंट सी इट डजंट मीन इट्स नॉट देयर, ठीक है। अब वो अगर देखो तो वो मानोगे तो चाहे उसको जानोगे, religious दैट डायलॉग, sorry? दैट डायलॉग ऑफ योर फिल्म, मानोगे तो जानोगे। मानोगे तो जान लोगे, एग्जैक्टली द पॉइंट। अब देखो ये सारी वो चीजें हैं जिसका ताल्लुक हमारे कल्चर से भी है, इसको फिर साइंटिफिक बेसिस भी देना, ताकि हमारी एक जनरेशन इसको वो एक कनेक्शन भी बना सके कि यार ये बात हवा में नहीं हो रही है, जो हम बचपन से जिनों बुतों की कहानियां सुनते आए थे, हो सकता है कि पोटेंशियली कोई क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर इनकी कोई एक्सप्लेनेशन हो, यू सी व्हाट आई मीन। या सो ये कनेक्शन हमने बनाया था। सो अब ये करने के लिए देयर वाज अ लॉट ऑफ रिसर्च इन्वॉल्व, और ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं, ये मैं बार बार कहता हूं, और ये आई कांट इटरेट दिस इनफ, ये पूरे का पूरा क्रेडिट मैं असफर को देता हूं, बिकॉज ये किसी और के बस की बात नहीं थी, एज फार एज जितने लोगों को मैं जानता हूं फिल्म इंडस्ट्री में, कि वो इसको हजम कर जाते इस पूरी चीज को। मुझे याद है वो कितने हमारे घंटे लगे कि जिसमें मैं असफर के सामने पूरी पूरी फिलॉसफी रिगर्जिटेट कर रहा होता था, और ये पेशेंस से सुन रहा होता था कि हाँ ये ओके, ये ऐसे होता है, ये और ऐसे एंड होता में है, कहता था ये ऐसे होता है, नहीं? क्या कह रहा है? फासिक, एंड में सुन के कहता था नहीं। नहीं, नहीं, हाँ, ये भी होता था, ये भी होता था, सुन के कह रहा था नहीं। ये कुछ डायरेक्टर्स आतिफ सर होते हैं ऐसे। हम लोग भी जब अपनी सीरीज को प्लान कर रहे थे, इतने अच्छे अच्छे आइडियाज मैं इंस्पिरेशन लेके बास को सुनाया, बास ने कहा हाँ जानी देख तू कह तो सही रहा है, लेकिन नहीं। लेकिन नहीं, 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 वही ना, नहीं you कभी have तो to- नहीं you have कभी to- नहीं कभी रीजन होता है ना। देर हाँ, भी जैसे तुमने खुद आपको कहा है कि ही उसकी पहला जो ड्राफ्ट था लाइक 300 प्लस पेजेस, राइट। वो एरन सॉर्किन के फैन नहीं है। एरन सॉर्किन की आप स्क्रिप्ट तुम पढ़ो बैठ के स्क्रीन पे, तो आपको समझ आ जाएगी कि उसके issues क्या हैं, राइट। पूरी बुक्स ऑस्कर होती विनर है वो, हैं। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि वो कोई बुरा राइटर, हम्म। बट जो डायरेक्ट कर रहा होता है ना, उसको उसने अपना विजन अक्रॉस अगर करना है, और उसके साथ अगर वो वर्ड्स नहीं बैठ रहे, तो फिर वो नोम की तरफ जाता है। देयर इज ऑलवेज अ रीजन। अगर
even it's not just Atif on set, मुझे actors Usman बहुत कभी अपने ideas throw करता है कि यार let's do this, why don't we do this, why don't we do that. If it goes with my story and my idea and it doesn't go against what I'm trying to do, I do it. But अगर वो नहीं हो रहा होता, I simply say no. वो sometimes ऐसा लगता है कि नहीं मैं जानबूझ के कर रहा हूँ, but it just doesn't work with my film. अक्सर तौर पे मुझे भी सुनने को यही मिलता है, नहीं नहीं तो आइडियाज ऐसे थे ना, मैं क्या उस्मान भाई वो उन्होंने बताया कि आपका भी ऑन सेट बहुत सारा इनपुट था, तो एज अ डीसी फैन व्हाट आर द थिंग्स दैट यू ट्राई टू इनकॉर्पोरेट इन दिस प्रोजेक्ट कि आपको लगा हो कि आई थिंक ये मोमेंट इस तरीके से अगर हम कर लें तो और ज्यादा यार, I mean, I think हमारे लिए ना the set was like a candy shop. Like we were geeking out. We were, me and Ali were fanboying over most of the things that were happening. हाँ The layer that was made for the AR layer. हाँ We would just go there and sit and just look at it. We would just look at it. And I remember जब हम लोगों का shoot layer का खत्म हो गया तो they were supposed to dismantle the set. So we went there and we sat there, me, Ali, Salman, Pasha, our AD, and all of us, and we just sat there quietly. That we're just sitting there because it's not going to be there tomorrow. We spent this is like our home, and so we were, it was just a lot of respect for the content and the work that we were doing. You rarely do certain projects that kind of, stay with you and you're proud of and you're happy about doing it and you're happy to go to work every day. And that was the case when we were doing this film because, we would wake up and we would be like, I tell you, I'll tell you, like there was a drama I was doing, and that's when I realized, because I went on set and I would read the scenes, and it wouldn't excite me, I'd be like, and I started questioning myself. I'm like, yeah, am I losing interest in acting? Am I just getting really bad with acting? Like, what is happening? Like, because I'm not excited. Like I read this lines and it's just not. And then one of the actors, she's a very good actor and she takes her work very seriously. And there was a scene between us, and she sat down and she wrote those lines. Like she made sure that she works on that scene. And I was given that scene and I read it and I'm like, that's not written by the writer. That's not the writer's lines. This is a different scene. So I asked her, and she like, yeah, I kind of sat and I wrote it myself. And that was such a good scene that I suddenly became excited to kind of act it out, kind of reigniting. And that's where it hit me. For an actor, a script and like the kind of work you're doing, like really matters. So with Umru, we were like every day we were waking up and we were just happy to go to work. And even till this day, like Ali, me, Sanam not so much, because Sanam's not really a superhero fan. But she also, I mean, she loved working on this project. But I mean, me, Ali, Salman, like we till this day like are very emotional about it, and we still like, talk to each other and like, we talk in like that AR language, and like it's to some it's very strange. To my wife, it's very strange. She's like, okay, weird, but like to us, we're like, we were every day. It was a good day to go to work and work on this project. So yeah, I mean and till this day, I keep sharing ideas with Asfar about the sequel. Oh, how about we do this? It would be so cool. Atif, I message randomly. I'm like, hey, Atif, I'm like, hello?
and I would just share like a random idea and like, okay. But yeah, I mean, because we're so excited and we're so passionate about this kind of stuff. या दो चीजें, दो इंटरकनेक्टेड क्वेश्चन हैं टू ऑल ऑफ यू. Yeah. सबसे पहले व्हाट वेंट रॉन्ग, बिकॉज एक 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 दिस स्केल का प्रोजेक्ट उसको आगे लेके चलना, टू कोलैबोरेट विद ईच अदर. आप लोगों की स्टोरीज और इन चीजों से ये पता चला कि यू गाइस वर इन सिंक, सही है, बट किसी ने किसी चीज पे भी ज्यादा कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, राइट? Whether it be writing, whether it be directing, whether it be acting, everything was on point कि हमें कैसे लेके चलना है आगे. बट समटाइम्स थिंग्स गो रॉन्ग. समटाइम्स एज ए डायरेक्टर असर भाई, सम थिंग्स जो जब आप सोच के जाते हैं, या यू हैव इट ऑन पेपर, यू हैव एवरीथिंग रिटन डाउन टू द लास्ट डॉट, लेकिन समटाइम्स थिंग्स हैपन जो आपको ऑन द स्पॉट इम्प्रोवाइज करना होता है. नाउ इम्प्रोवाइजिंग इस स्केल पे, इस प्रोजेक्ट पे विल लीड टू मल्टीपल वो वेव्स चली जाएंगी कि यहाँ अगर मैंने कुछ चेंज किया तो फिर टिल वीएफएक्स के डिपार्टमेंट तक एवरीथिंग वुड बी लाइक हिलेगा, वहां पे एवरीथिंग वुड बी थोड़ा सा आउट ऑफ प्लेस. तो उसको कैसे आपने मैनेज किया? Improvisation तो is a must do, whether it's a short film scale or a large film scale, but that does not mean कि आप pre ना करें. आपकी pre बहुत important होती है, आपका script से लेके storyboard, then animatics if possible, and then when you are doing rehearsals, उसमें blocking आप पहले कर लें. And if you have the locations blocked, तो आपकी सारी blocking उधर ही, आप rehearsal जब आप कर लेते हो ना, full dress rehearsal जिसे let's say आप कह सकते हो, वो भी अगर आप कर लेते हो तो बहुत सारी चीजें जो आपकी resolve जाती हैं. उसके बावजूद आपको इम्प्रोव करना होता है. एंड इम्प्रोव डज नॉट मीन कि वो कोई बुरी चीज है. बाय द वे, इम्प्रोव समटाइम्स मेक्स द थिंग बेटर, समटाइम्स, एंड समटाइम्स यस इट रूल्स समथिंग, एंड देन फिर वो एक उसको मैनेज करने के लिए फिर आपको कुछ और बेहतर करना पड़ता है. बट इन माय केस हमेशा से मेरी प्री शुक्र है कोई ऐसी रही है कि जिसमें मुझे कभी नेगेटिव इम्प्रोव नहीं करना पड़ा, हमेशा बेहतर इम्प्रोव. तो लाइक फॉर इंस्टेंस अभी हम जैसे अभी बात कर रहे थे कि उस्मान भी कभी कभी कोई आइडियाज वो थ्रो करता है. तो देयर आर मोमेंट्स वेयर यू नो उस्मान वुड से हे कैन आई से दिस, यू नो शुड आई से दिस. अब वो अगर ऐसी चीज है जो स्पेशली इन केस ऑफ उस्मान, यूजुअली यू नो ही हैज रियली गुड ह्यूमर, उसकी कॉमिक टाइमिंग भी अच्छी है, तो मुझे हंसी आ गई तो और अगर वो ह्यूमर वाली बात है, आई एम सोल्ड एंड मैं वो कर देता हूँ. समटाइम्स ऐसा होता है कि नहीं हंसी भी आ रही है लेकिन वो हमारे कैरेक्टर के साथ नहीं है, तो मैं रिलेट करता हूँ, बट वो एक इम्प्रोव ही हुआ है इतना. अब मुझे वो ना क्यों करना पड़ता है, वो इसलिए क्योंकि अगर वो कुछ कर रहा है तो उसकी वजह से मुझे डोमिनो इफेक्ट करना पड़ेगा आगे, जब पीछे जो मैं कर रहा हूँ उसको उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट हो रहा है, विच आई कैन नॉट डू नाउ एट दिस स्टेज, जबकि प्रोडक्शन फुल ऑन टोटल में चल रही है, सारा पैसा लगा हुआ है, यू कांट टेक दीस रिस्क. तो उस केसेस में फिर ना ही करना पड़ता है. बट देयर आर बिगर इम्प्रोव्स एज वेल. समटाइम्स आपने शॉट कुछ सोचा होता है कि मुझे ये शॉट चाहिए, एंड देन इवेंचुअली वो आपका जो आपका सिनेमेटोग्राफर है वो कंस्ट्रेंट है बिकॉज ऑफ यू नो उसके ऊपर एक लिमिटेशन है बिकॉज ऑफ इक्विपमेंट दैट वी हैव. ठीक है, हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं मौजूद है जो कि हमें रिक्वायर्ड है टू अचीव दैट शॉट. तो उस केस में इम्प्रोव आ जाता है बिकॉज मैंने जो बोर्ड किया हुआ है मुझे वो नहीं मिल रहा, तो फिर मैं उसके क्लोजेस्ट एक और बोर्ड उसी टाइम पे प्लान करता हूँ और वो उसके साथ डीपी के साथ डिस्कस करके एंड वी गो विद द बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन. वो भी एक इम्प्रोव है. एक्शन सीक्वेंसेस में इम्प्रोव आता है. देयर सो मेनी थिंग्स दैट हैपन समटाइम्स. ये एक्शन सीक्वेंस में हमारे फिल्म के अंदर देयर वर सो मेनी वेपन्स दैट वी वर यूजिंग व्हिच ब्रोक, एंड हमारे पास उनके यू नो डुप्लीकेट्स कम इतने ज्यादा भी नहीं थे, तो वी हैड टू बी वेरी केयरफुल विद दो. लेकिन एक्शन के दौरान केयरफुल रहना इज समटाइम्स नॉट दैट इजी. तो उसमें इम्प्रोव हम ये करते थे कि फिर ऑब्वियसली रन टाइम पे मैं अपना मेरा जो प्रॉप मास्टर था मैंने उसको ये कहा हुआ था कि मेरी गन टूटे और मेरे नेक्स्ट शॉट के एक्शन कहने से पहले वो मुझे जुड़ी हुई वापस मिले. तो देयर वाज अ चेन पीछे जो चल रही थी, जो मेरे प्रॉप मास्टर की और पीछे उनके जूनियर्स की आपस में, कि दे वर लाइक इन सिंक विद मी कि अच्छा इन्होंने एक्शन कह दिया है, कट हो गया है, नेक्स्ट शॉट की रिहर्सल और प्रेप हो रही है,
वी नीड टू गेट दिस वेपन रेडी। तो वो फिर हम, क्योंकि नए नए बार बार उसी वक्त तो नहीं ला सकते, कुछ और डिजास्टर भी समटाइम्स हो जाते थे। तो ये होता है, दिस हैपेंस ऑन एवरी सेट, बट ये नहीं है कि हमारे यहाँ ही होता है, बाहर जहाँ पे सब टेक्नोलॉजी अवेलेबल है उनके वहाँ पास भी भी होता ऐसे है, हाँ। हैं जहाँ पे नहीं होता। सो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ स्केल, कि हाँ वो एक बड़ा स्केल छोटा स्केल ये होता है बस, बट इट हैपेंस एंड बट इट इज अ गुड थिंग टू इम्प्रोवाइज। मैं ये कह रहा था कि उस्मान भाई जब आप लोगों को आइडियाज दे रहे होते हैं कि अगले सीक्वल में क्या क्या होना चाहिए, तो जब फिल्म एंड हुई और हम लोग तो वैसे ही 2 बार देखकर आ गए, अच्छा उसका एंड जो है वो बहुत ही स्क्रीम करके कह रहा है कि स्टोरी एंड नहीं है। तो अब आप मुझे बताएं कि आपने लिखी है और आपने जो है वो डायरेक्ट किया है, तो आप लोगों के दिमाग में अभी कुछ है इसको लेके? अगर प्रोड्यूसर, ऑब्वियसली असफर सर जो आप कह रहे थे कि अगर प्रोड्यूसर जो है वो कन्विंस हो जाता है रिस्पॉन्स से, तो हाँ, आपके is पास there a है प्लान्स blueprint? उसको आगे Is there a करने के? blueprint? यार मैंने तो I have a blueprint for a trilogy. I had a blueprint for a trilogy before even I went to Atif. ठीक है? Yes, it evolved big time. बहुत उसकी evolution हुई, और उस evolution की वजह से वो जो part 2 and 3 है वो थोड़ा सा और पुश होना शुरू हो गया इन टर्म्स ऑफ आइडियाज जो मेरे थे, एंड उसके अंदर से मैंने बहुत सारे डिस्कार्ड भी कर दिए। नाउ ओके, नाउ आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट बिकॉज़ देयर वर सो मेनी थिंग्स दैट Atif brought on into this project as well, and now those things won't work that I want. But there are still some things जो कि from day one जो मैंने सोचा हुआ है वो अभी तक चल रहा है, and there are certain things जो कि again thanks to improvisation वाली थी which developed while I was doing this film, while I was making this film, because of what actors did, because of what we did in action, because of the disasters that we had to, cover up in this film. उन सब की वजह से it has evolved, and in my mind, I have a very clear idea where this needs to go. For part 2 तो पूरा imprint हुआ हुआ है। 3 पे I can say कि बहुत क्लियर आइडिया है कि मैं चाहता क्या हूँ, बट उस तक पहुंचने के लिए आई नीड टू क्रिएट अनदर ब्रिज अगेन बिकॉज ऑफ यही अगेन दीस रीसेंट चेंजेस। आई डोंट नो अबाउट आतिफ एंड उस्मान के आइडियाज आई नो ऑलरेडी बिकॉज लाइक ही सेड कि वो ही शेयर्स एवरी नाउ एंड देन। बहुत डिटेल हमारी डिस्कशंस भी हो चुकी हैं, ही इज वेरी पैशनेट अबाउट दोस एज वेल, जिसके एंड में मैं नो भी नहीं कहता, मैं सुन रहा था। द थिंग इज आई एम जस्ट वेटिंग फॉर टू स्टार्ट, राइट? If it's going to happen, then only we can do something about it. Yeah. एक लास्ट क्वेश्चन है, फिर हम लोग एंड की तरफ जाते हैं। उस्मान भाई, कैन यू हियर मी? Yes. उस्मान भाई, मेरा आपसे ये सवाल था कि मुझे आपके प्रोफाइल से जितना पता चल रहा होता है कि आप डीसी को बहुत सपोर्ट करते हैं, तो आप कितना एक्साइटेड थे इस जर्नी को लेके? क्योंकि इससे पहले मैंने जो आपकी सिनेमा में फिल्म देखी वो चक्कर थी, ठीक है, और अभी मैं आपका ड्रामा देख रहा हूँ, जफा और ड्रामाज में ही आपको मैंने देखा है। तो आपकी जो एक्साइटमेंट थी वो किस लेवल पे थी जब आप इसको शूट कर रहे थे ड्यूरिंग द प्रोडक्शन पीरियड, कि आपको कैसा लग रहा था? यार बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे, वी वर ऑल वेरी वेरी एक्साइटेड। लाइक मुझे याद है जब हमें इनिशियल रिहर्सल प्रोसेस और कास्टिंग प्रोसेस शुरू हुआ था एंड वी फाउंड आउट दैट फरहान भाई इज प्लेइंग लक्का, so we would leave VRC ka office and me and Salman would stand outside in the parking lot just geeking over the fact that Farhan Bhai is in the film and we're doing Umru Yaar. Yeah. We would stand there for like at least like 45 minutes an hour just talking about it. इतने वेले हुए थे हम लोग उस वक्त, and we were just so excited about the entire thing. इतनी एक्साइटमेंट मैंने नहीं देखी पूरी कास्ट में कभी भी कोई ऐसी फिल्म शूट करते हुए। अपना काम करते हैं, चले जाते हैं, बाहर कॉल टाइम पता होता है, कॉल टाइम पे यू शो अप, यू डू योर वर्क एंड यू लीव। बट दिस वाज जस्ट द एनर्जी वाज डिफरेंट ड्यूरिंग द शूटिंग। इट वाज जस्ट इट वाज वेरी बल्कि मुझे याद है कि मैं आई रैप्ड अप उमरू, उसके बाद आई वाज I had a couple of other projects, and then after सवा एक साल बाद I went on set to shoot Chikkar. So I was in Lahore for a couple of months to shoot that. And मेरी हर दूसरे तीसरे दिन मैं असफर को कॉल करके कहता था what's the update? What's the update? And Asfar would give me updates, but मेरा उस वक्त ये होता था कि यार कब रिलीज करेंगे। सो द एक्साइटमेंट वाज देयर इवन आफ्टर
we had wrapped up shooting, and you know. Yeah. अच्छा, बल्कि इसको असफर updates कभी कभार देना मेरे ख्याल चाहेंगे? से तंग भी आ जाता था कि ये इतनी कॉलें मुझे क्यों कर रहा है, तो तंग कभी कभार मैं का- कॉल करता था, दूसरे तीसरे दिन तो असफर का था हाँ हाँ नहीं नहीं एक्चुअली रिलीज कब है? नहीं अभी नहीं। when he used to ask ना कि बताओ क्या बना, कुछ दिखाओ, कुछ दिखाओ। हाँ। The thing is कि ये बहुत क्रिटिकल है। उस्मान himself जाने नहीं देता ना कुछ छोटी मोटी चीज। Yeah, he has that analysis space ना कि he's constantly thinking about something, notices something. इनके कीड़ा face है। पे he has a And, really वो वाला poker face ना प्रॉब्लम कि है, एक बहुत हाँ। बहुत प्रॉब्लम है। ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड इट्स अ प्रॉब्लम, एंड उसको फेस करना जो है ना इतना आसान नहीं होता, स्पेशली जब आपके साथ इतनी फ्रैंकनेस भी हो ना, तो वो आगे से सीधा बताओ हाँ। अजफर मुझे Yeah. बताओ। Yeah. हम बता, अरे भाई क्या बताऊं? तो कहाँ पहुंचा, बताओ ना, कुछ दिखाओ ना, कुछ दिखाओ। मैं यार मेरी शक्ल देख लो। हाँ। फिर मैं ऐसे कुछ एक्चुअली मैं कुछ क्लिप भेजा भी करता था। आई यूज्ड टू सेंड हिम हिज पिक्चर्स फ्रॉम द एडिट। कुछ टेक्स में ना जहाँ पे इसने कैमरे को देख लिया या कुछ, या शक्ल अजीब सी बनाई हुई है, तो मैं वो स्टिल्स बना के तो भेजा करता था, ये देखो ये है, ये किया है। बट द ट्रूथ इज कि द रीजन व्हाई आई नेवर लाइक, मैं क्योंकि देखो हाफ बेक चीज जब किसी ऐसे बंदे को दिखाओ ना जो इतना क्रिटिकल होता है ना, तो फिर आप अपने पैर पे कुल्हाड़ा मारते हो, क्योंकि फिर उस्मान ने ऐसा धोना है आप यार तो ये कर रहे हैं हम, अच्छा ये करेंगे हम लोगों को ये लेवल होगा, ये स्टैंडर्ड होगा। मैं कह रहा हूँ यार मैं अब इसको कैसे बताऊं कि ये एक आइट्रेशन है हम लोग। मैंने इसलिए बहुत कोशिश की कि यार नहीं, मैं इसको फाइनल जो मेरी तरफ से होगा वो दिखाऊंगा, फिर आई विल डिपेंड दैट अगर उसको पसंद नहीं है तो आई कैन डिपेंड अ हाफ। ये हरकतें करते हो वो अलग बात है। बट उस्मान भाई, आपका क्या रिएक्शन था? व्हाट वाज योर रिएक्शन के जब वो जो एक फिनिश्ड प्रोडक्ट है, इवन इफ आई टॉक अबाउट द मनी शॉट जो आपका है, तो वो जब एक आपने देखा स्क्रीन पे, ऑन स्क्रीन रेडी एवरीथिंग पुट टुगेदर, तो फिर क्या रिएक्शन था कि हाउ डिड इट फील? आपने जब मारी देयर इज अ सर्टेन फीलिंग कि आप जब घर जाते होंगे एंड यू से आई एम अमर, आई एम अ सुपर हीरो। तो यार it was feeling like that. it was very emotional for the team, because we all sat together and we watched the film and we would keep sharing, like, and you know we just had a great time, and we had discussed this. Me and Ali actually got on call day before, like the night before, and we were like, dude, we've done everything, we've acted, we've promoted everything, now let's just go into the cinema and watch the film like the audience. Just let everything go and just watch it like the audience. And we had a great time. I mean, we had fun. We genuinely watched it, and we were like, wow, man, we did this, you know. So it was a good yeah. Yeah, thank you guys कि आप लोग you paved the path for taking these kind of risks, these kind of experimentation, और yeah, really, और एक होता है ना कि एक pioneers वाली फीलिंग आ जाती है कि यार हमने सबसे पहले झंडा गाड़ लिया है, सही है। and I'm really as a Pakistani, as a follower of you guys, of your work, of Pakistani cinema, I would gladly say कि when I started filmmaking और ये सारी चीजें, I had this dream कि यार why हमारे यहाँ ऐसी चीजें प्रोड्यूस नहीं की जाती हैं, हमारे यहाँ ऐसी स्टोरीज क्यों नहीं है, और हमारी अपनी स्टोरीज हैं, एंड देयर इज अ वर्ल्ड अराउंड अस, सही है। तो या अब जब हमारे पास इतना सब कुछ एक्सेस है, तो व्हाई नॉट एक्सप्रेस आवरसेल्व्स इन स्टोरीज के जरिए, है ना? तो you guys are you really inspired me to go ahead as a filmmaker, and Ateeb would agree on that. I think Ateeb ने जो बताया था कि आपकी यूनिवर्सिटी वालों ने आप लोगों को कहा कि यार प्लीज लाओ वो, you know, that's a win for us actually. I think हमारा काम, एक बंदा भी अगर कि अफेक्ट हुआ इस चीज से, हमारी एफर्ट से, I think we won. That's great. Yes, absolutely. Yeah, Absolutely. yeah. Thank you guys. आप लोगों ने टाइम निकाला और वो मल्टीपल डिस्कनेक्शंस को वो किया। हाँ, और आप लोग बुरा नहीं माने, सो थैंक यू सो मच।
No, thank you guys, and best of luck for everything that you guys do, and really looking forward to. What's your plan with this, by the way? Yeah. What's your plan with the Titan? Titan Universe, yeah, actually we were also planning on a Jinverse, but आप लोग पहले पहुंच गए वहां पे, but it was really like No, refreshing. they can be multiple Jin हाँ verses. हाँ I'm Universes currently हमारे को you copyright can थोड़ी have दे your own. yeah I'm currently मेरे अपने पास इस वक्त 2-3 कॉन्सेप्ट्स ऐसे अलग हैं जिनमें जिन्नात मौजूद हैं, हाँ, but they're not related to it. basically what I'm planning is मैंने उस्मान भाई को I DM'd also. I'm planning on उस्मान भाई you did gaming, right? तो मेरा जो Yes. pitch है वो Last of Us type मेरे पास एक है. It's also sci-fi. Oh, सही है? nice. And you would be perfect for the character. सही है? तो man, I'd love to. मेरे पास I'd love to. I'm all for like sci-fi, post-apocalyptic. I'm all for it, man, because I think Yeah. there is a market for rom-com and drama and all of that, but ये चीजें नहीं होती, horror नहीं होता. Yeah. These kind of things. So I mean, we'll definitely talk about this whenever you guys are ready. I'd love to. I have I I have a pitch short film also. It's already made, edited, everything. तो वो मैंने एक concept बनाया था जिसको मैंने कहा था कि I'll pitch it someday to you. और मैंने अतीब को भी ये बात बताई थी. और in terms of Jinverse, I'm planning a Alibaba web series. Very cool. Yeah. Very cool. Yeah. So ये दो projects हैं जो lined We'll up हैं. definitely talk. Do you have a producer on board? We do not have that, unfortunately, because वही अतीब वाली बात, we need someone to like अपनी voice पहुंचाना कि we have certain ideas that we would like to pull off. बस वही जो bridge creation वाली बात आपने की थी, तो हम उस stage पे कि we're creating a bridge. Yeah. Yeah. For sure. No, definitely. Yeah, we can definitely talk and see. And I mean, you can take my number from like, you can send me a message on Instagram and I'll send it to you and we can talk about it. Yeah. Thank you guys. बाकी यार it's quite a pleasure to see कि तुम लोग actually कुछ passionately कुछ कर रहे हो. It's actually very commendable. I've seen जो भी मैंने trailer देखा था, it was actually वो it's quite something to look at. ठीक है. So और मजे की चीज ये कि उसमें you're grappling with a lot of concepts at the same time. Yeah. ठीक है. तो time का concept है वगैरह. So it's a pleasure to see कि you're actually getting into that. तो बाकी if there is anything I can do to help, अगर आपको कोई किसी किस्म की writing में या world building में किसी किस्म की help चाहिए हो, do let me know. I'll help you out in any way I can. Thank you so much. Yeah. Thank you. Thank you guys. Thank you. Thank you. All right. Look after yourself. Take care, guys. Thank you. Good luck for the movie. Thank you. Thank you. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Allah Hafiz. हर दुश्मन से कह दो हम आ रहे हैं, हमें रोक के दिखा। तैयार हूं। बाबा आप ही से पी रहे हो? This is our secret.